इस वक्त मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर एक इंटरैक्टिव सेशन हो रहा है जिसमें स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हैं और सीधे बातचीत कर रहे हैं। सुनिए। डॉक्टर मोहन यादव जी, accompanied senior bureaucrats of the government of Madhya Pradesh, other dignitaries sitting on the dais and in the audience, eminent industrialists of Punjab, ladies and gentlemen. It is indeed a great pleasure for me to welcome Dr. Mohan Yadav ji, who is a versatile personality, man of sharp business acumen and above all woven in simplicity and sensitivity. He has extensive experience in governance and well understands the aspirations of the people of the state and is working tirelessly to lift their living standards through faster and sustainable industrialization of the state. The state of Madhya Pradesh is an extended home to Vardhaman and has contributed immensely towards the growth of the Vardhaman group. The group today has invested about 5,000 crores in Madhya Pradesh in a phased manner in about 20 years. And has been employing about 10,000 people in the state. We have 3 plants in Madhya Pradesh located in Satlapur, Mandiri and Budni. Budni has one of the unique integrated plants from fiber to fabric. As a group, we always believe in the philosophy of humble beginnings and conservatism. We started by setting up a spinning mill in Madhya Pradesh in 1989. However, over the period of time, our confidence grew in the state and in the political leadership, and trust deepened in the state's bureaucracy and the congenial social-economic environment of the state, which has been very supportive for doing business. The commitment of the political leadership of the state ensures a peaceful law and order situation and always available attitude at all levels of governance, which has greatly built our confidence. The bureaucracy is highly efficient and ensured all help in developing new industrial sites in the state for investors like us, which helped us to focus on our core business. The fairness of the political leadership and sound financial position of the state ensured the honoring of all commitments made to industry related to subsidies and incentives on time without any delay. The peace-loving workforce available in sufficient numbers in the state has ensured smooth running of operations. It needs special mention that a large number of female workers work in our factories and there is no shortage of female manpower. In our factories, we employ about 50% manpower, which comprises of female workers, and about 2,000 female workers stay in the company's hostel facilities which are provided by us. This has immensely helped in the women's empowerment through industrial employment, which became possible only with a proactive engagement of the government and the industry. Besides the location of the state in central India, the physical infrastructure like roads, water supply and high quality electricity availability, good schools, colleges, social amenities are excellent. Today, a large part of our manufacturing units are based in Madhya Pradesh. The overall ecosystem, including the amenable political setup, efficient bureaucracy, ease of doing business, and keenness of the workforce to assimilate Vardhaman culture while retaining unique local features has motivated us to completely focus on expanding in Madhya Pradesh. Lastly, I would like to convey my best wishes to the government of Madhya Pradesh
for a successful and bright future. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. I would like to invite Shri Subhash Chandra Raghan, President, Federation of Indian Export Organizations and Managing Director, Shri Tools Private Limited. आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री सुभाष चंद्र राघान जी का। Honorable CM Yadav sir, all the industrialists on the dais, all the senior officers of the incentives which the Madhya Pradesh government is offering at the moment, I think that is going to be the best in this India. PO stands ready to support the partnership. We will work closely with the MP government to facilitate the investment-linked export opportunities, policy advocacy and capacity building for new exporters setting up in this state. Let us join hands, Punjab and Madhya Pradesh, to build a new growth corridor for Make in India and export from India. Thank you very much. Jai Hind. धन्यवाद। और आइए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के कार्यक्रम के सबसे मुख्य भाग अब मैं आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को, और आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और अब हम उनका उद्बोधन सुनेंगे, तो जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान चेयरमैन ट्राइडेंट ग्रुप श्रीमान राजेंद्र गुप्ता जी, श्रीमती सुचिता ओसवाल, वाइस चेयरमैन वर्धमान ग्रुप, श्री दिनेश ओसवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर नाहर ग्रुप, संजीव पहावा जी, लालसन ग्रुप चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान संजीव कालरा जी, श्रीमान लोकेश जैन जी, उपकार सिंह आहूजा जी, SC दलहन जी, मेरे साथ मध्य प्रदेश से आए मेरे SCS और PS क्रमशः नीरज मंडलोई जी, राघवेंद्र सिंह जी, और इस अवसर पर आप सब सत श्री अकाल। और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, जय महाकाल। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे देश की गति, प्रगति और उन्नति हो रही है, हमें गर्व है। मैं ऐसी धरती पे हूं जिस धरती की एक अलग ही पहचान है। ये वीरों की धरती, महावीरों की धरती और दुश्मनों के दांत खट्टे करने वालों की धरती है पंजाब की धरती, हमारी गुरु परंपरा की अद्भुत धरती, जो अपने मन के भाव से परस्पर आत्मीयता भी जोड़ती। खुश हो जाए तो प्राण दे दे और दुश्मनी हो जाए तो जमीन में गाड़ दे। इस मामले में परमात्मा की दया, जिस भाव को लेकर के पंजाब ने अपनी पहचान बनाई। मैं आज के इस अवसर पर लुधियाना की उस धरती पे अपनी कोई बात करने के लिए खड़ा हूं, जो मध्य प्रदेश के साथ जैसे हमारे नगरों की इंदौर की स्वच्छता की पहचान होगी, लेकिन उद्योगों की राजधानी मध्य प्रदेश के समान अगर ये पंजाब की बात करें तो ये पंजाब का लुधियाना शहर उद्योगों की राजधानी की तरह, ये भारत का मैनचेस्टर की तरह है। मेरी अपनी ओर से यहाँ के सभी उद्यमशील पुरुषार्थी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं लुधियाना का इतिहास देख रहा था। लुधियाना का इतिहास वैसे तो सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले प्रारंभ हो गया, बाद के काल में भी, हर काल में, हर समय 2000 साल पहले, 500 साल पहले, लोधी वंश में, अलग अलग समय में यहाँ के अपने उद्यमशील लोगों ने अपने वस्त्र से, लघु उद्योग से, अपने इस पूरे देश को, ठीक है ईरान और आगे तक भी कई सारी जगह तक
अपने व्यापार व्यवसाय से पहचान बनाई। और अभी आजादी के बाद और साथ में तो 40 से 47 तक का दशक, कहा छोटी छोटी साइकिलों के कितने जबरदस्त रूप से काम करने वाले लोग मिले। A1 साइकिल और दूसरी कौन सी साइकिल, हीरो। क्या बात है, हीरो का विज्ञापन भी क्या आता था। लेकिन कोई एक बात नहीं, सभी क्षेत्रों में मैं मान के चलता हूं, मध्य प्रदेश और खास करके पंजाब के संदर्भ में कहूं तो ये सगे बिछड़े हुए भाई है दोनों एक तरह से। इनको मैं इस नाते से भी बधाई देता हूं, क्योंकि एक तरफ पंजाब का गेहूं और एक तरफ मध्य प्रदेश का गेहूं, दोनों किसी से कम नहीं है। पंजाब बड़ा भाई है तो मध्य प्रदेश छोटा भाई है। हमको मिलकर के काम करने की आदत है। आज बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला, हमने सब ये बात तो सही है, जैसे राजनीतिक दलों को छूटे थे कोई कहीं भी आकर के काम करे, अपनी पहचान बनाए, हमारे लिए भी तो छूट है कि हम आपको आमंत्रित करें कि आप अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाएं, यहाँ भी काम करें, मध्य प्रदेश भी काम करें। सरकार आपको सब मदद करने के लिए तैयार है, किसी प्रकार से कोई कमी आने वाली नहीं। जब मैं दिल खोल के बात कर रहा हूं तो आपका भी दिल खोल के संदेश तो आना चाहिए। सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर मैं पॉलिसियों पे बात नहीं करूंगा। पॉलिसियों पे बात करने के लिए हमारे सारे अधिकारियों ने बात कर ली कि हम किस किस प्रकार से कैसे कैसे मदद करेंगे, और उसी प्रकार से जो ऑलरेडी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और यहाँ भी काम कर रहे हैं, ऐसे नाम धन्य ऐसे सारे हमारे परिवार से जुड़े हुए उद्योगपति भी मंच पे बैठे हैं। और जैसे आपके साथ हम बैठ करके बात कर रहे हैं कि ये बात सही है, बदलते दौर में जब हम भारत को सिरमौर बनाना चाहते हैं, आज के दौर तो वो कैसा आकर्षक है। देखो बड़े बड़े राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष छोटे छोटे मामले में रोज व्यापार की बात करते, ऐसी बात करते आपको मालूम है, एक तरफ युद्ध की बात चलती और हाथों हाथ डील की बात नहीं चलती। ये नया दौर का समय आया, कभी आपने सुना था कि ऐसा कुछ होने वाला, लेकिन ये समय वास्तव में सजगता का भी और तत्परता का भी और इसी प्रकार से त्वरित गति से निर्णय लेने का भी, समय के साथ बदलते दौर में हमको कदम से कदम मिला के चलना। वैसे तो मैं उद्योगपतियों को ऐसा भी मान के चलता हूं, उद्योगपति केवल अपने लिए इंडस्ट्री नहीं चलाता, आपके माध्यम से कई सारे लोगों का पेट पलता है, गरीबों की जिंदगी में उजाला आता है। इसलिए आपको बधाई देता हूं, यह भी बहुत बड़ा पवित्र काम आपके माध्यम से होता है। ये एक तरह से हमारे उस पवित्रता के भाव को रेखांकित करता है, जिसके कारण से हमको लगता है कि ईश्वर ने हमको अगर जन्म दिया तो हमारे अपने जीवन में, हमारे जीवन यापन के माध्यम से हमारे परिवार का तो हम पालन पोषण करते ही हैं, लेकिन हमारे पालन पोषण के करते करते हमारे देश की आर्थिक समृद्धि भी आ, और परमात्मा ने हमको यश दिया तो हम अपने यश को भी हासिल करें और बदलते दौर में समय के साथ बदलते जाएं। आप मित्रों एक बात जरूर देखना, अभी हमारे यहाँ ज्यादा पुरानी बात नहीं, केवल 300 साल के अंदर की बात, व्यापार करते करते इस देश ने गुलामी की जंजीर की दास्ता कब पहन ली हमको मालूम नहीं पड़ा। ये वो धरती है जहां पर भगत सिंह खड़े हुए, जिसने अपने आप से इस देश को न केवल लोकतंत्र के लिए बल्कि आजादी के साथ साथ अपने बलिदान से एहसास कराया कि इस देश के लोगों को अगर कोई गुलाम रख सकता है तो गुलामी की मानसिकता के लिए उन्होंने अपनी शहादत इतनी छोटी सी उम्र में दी, और ये भी मानते हुए कि वो चाहते तो वो अपने आप को अलग प्रकार से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मित्र चंद्रशेखर आजाद सहित सभी क्रांतिकारियों से कहा था कि आज का समय बलिदान मांग रहा, और बलिदान मांग करके उन्होंने एहसास कराया कि भारत आजादी मांग रहा और मुझे बलिदान देना पड़ेगा। मैं नमन करता हूं भगत सिंह के उस वीर बलिदान को, जिसके कारण पूरा देश धन्य हुआ है, हमारी आजादी सौभाग्य मिली। मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात कर रहा हूं तो आज के बदलते दौर में मध्य प्रदेश से आपको बुलावा आया, मध्य प्रदेश आपको आमंत्रित कर रहा, एक घर मध्य प्रदेश में भी बनाना, एक यहां भी रखना, एक फैक्ट्री वहां भी लगाना है, एक काम यहां भी करना। अब ये बात तो सही है कि जब मैं आप में से देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने अतीत के काल के आधार पर पंजाब के अंदर एक मालवा भी है भी मालवा समय का मालवा याद दिलाते हैं, ऐसा कहते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत आप इतिहास देखना कि जब सम्राट वीर विक्रमादित्य ने उस समय के अपने
उस दौर में जब शकों का साम्राज्य आ गया तो शक हमारे देश के नहीं थे, वो दुनिया के पता नहीं किस हिस्से से आए थे, रोम के आगे से, और ऐसे में पूरे देश को उन्होंने गुलाम बना लिया। और गुलाम बनाने के बाद इस देश में जैसे अपने आप पिछले समय के या दुनिया के कई देशों के हालात हम देख रहे हैं, ऐसे समय में वीर विक्रमादित्य ने अपनी तलवार के बलबूते पर न केवल देश को आजाद कराया था, बल्कि यहाँ भी पंजाब में मालवा और मध्य प्रदेश का मालवा मिलकर के पूरे देश में एक अलग प्रकार का आनंद और उत्साह का वातावरण दिया। वो हजारों साल का हमारा इतिहास जिसके आधार पर हम और आप जुड़े हुए। माल वाले के पास मालवा होता और किसके पास होता है? मालवा का मतलब क्या है? मालवा नाम थोड़ी है, और माल वाले कहाँ, या तो पंजाब में या मध्य प्रदेश में। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि नहीं, आज बदलते दौर में हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश के अंदर बात कर रहा हूं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप यहाँ भी अपना व्यापार व्यवसाय रखें, यहाँ पर भी काम धंधा करें, लेकिन काम धंधा बढ़ना भी तो चाहिए। ये जो अपने हाथ का यश है ये निरंतर फलता फूलता रहना चाहिए। इसलिए बड़ी संभावना मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के अंदर की संभावनाओं को लेकर के जैसे मैंने कहा कि हमारी सरकार ने एक संकल्प लिया, संकल्प में उसमें गुंजाइश ये थी कि अगर आप रोजगार पर इंडस्ट्री लगाते हो, मुझे नहीं मालूम और कहीं ये व्यवस्था है कि नहीं, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री डालते तो लेबर आपके यहाँ काम करेगी, फैक्ट्री आपकी है, प्रॉफिट आप कमाओगे, लेकिन 5,000 रुपया प्रति लेबर भुगतान हम करेंगे ताकि हमारे अपने लोगों को रोजगार मिले। ये रोजगार पर इंडस्ट्रियों की दृष्टि से काम धंधे के आधार पर आपका चूंकि रोजगार पर इंडस्ट्री की अपनी कठिनाइयां भी होती, इसलिए उनके लिए मदद करना, तो जमीन, पानी, ब्याज, बिजली और बाकी चीजों में मदद करेंगे ही करेंगे, लेकिन मजदूरों के लिए भी मदद करेंगे। और इसीलिए देश भर में से हम ये बुलावने निकले। अभी तो कोयम्बटूर से आए थे, कोयम्बटूर से बड़ी संख्या में रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्रियां हमारे यहाँ के काम कर रहे। तो जब मैं लुधियाना में देखता हूँ तो सर्दी आने वाली, गर्मी लुधियाना ही आता है, लुधियाना के अलावा गर्मी नहीं आती है, तो बड़े पैमाने पे हमारे लिए संभावना की जगह है। मुझे मालूम है बड़े बड़े नाम, हम भी घर में कभी स्वेटर पहनते तो ओसवाल का ही ऊन लाते थे, दूसरा तो हमको बड़ा मुश्किल ही जाता है। और ये एक से बढ़कर एक ग्रुप ट्राइडेंट, बताओ आप दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट के लिए आपकी अपनी सेवा पंजाब के माध्यम से चलती। और ये जो अलग अलग प्रकार के आज हम लोगों से मिले तो अपनी फूड इंडस्ट्रियों को लेकर कितने प्रकार की संभावना, मैं आपको केवल 2-3 जानकारी देना चाहूंगा। हमारी सरकार ने जन हितैषी योजना और खास करके जिस क्षेत्र में हमारी कमजोरियां थी उस कमजोरियों में हमने आगे बढ़कर अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के बलबूते पर कई सारी योजना चालू की। जैसे स्कूल जाने वाला बच्चा अगर स्कूल 6वीं और 9वीं के बाद वो स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर से दूर उसका घर है, तो हमने कहा बच्चा पैदल नहीं जाएगा, साइकिल हमारी सरकार की तरफ से दिलवाई जाएगी, लाखों साइकिल हम आसान देंगे। ये इसके माध्यम से आपकी संभावना खोल रहे हैं, क्योंकि साइकिल हम दे रहे हैं तो साइकिल हम तो नहीं बना सकते, साइकिल तो आप ही को बनाना पड़ेगी। तो पंजाब की साइकिल मध्य प्रदेश में भी बन सकती है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अभी अपने बीच में ऐसे बहुत सारी अलग अलग संभावना वाली इंडस्ट्रियां मैं मान के चलता हूं। खास करके आज जिस प्रकार का समय बदला, इसलिए जीआईएस में यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे भोपाल आए और भोपाल में आकर के जिस प्रकार से हमारे जीआईएस का पूरा वक्तव्य में हमने प्रयास किया, वो उसी सिलसिले में भी हम आए। जब से हमारी सरकार बनी हमने पूरे देश के अंदर भी, अपने प्रदेश में भी और दुनिया में भी हमारे मध्य प्रदेश की नीतियों को लेकर, उसकी अच्छी पॉलिसियों को लेकर खुलेआम सबके बीच बात करते हुए अधिकारियों को भी लेके जाते। लेकिन अधिकारी के साथ साथ मैं, वैसे मेरा डबल रोल भी, मैं अपने मध्य प्रदेश का उद्योग मंत्रालय का काम भी मेरे पास ही रखा है और मुख्यमंत्री भी मैं, दोनों काम मेरे ही पास। ये आप सबसे सरलता से बात करने के लिए ही है, क्योंकि जब उद्योगपति से बात करते हैं तो उद्योगपति भी थोड़े बहुत, ऐसा तो है नहीं कि वो अपना उद्योग चलाते हैं, तो उनकी बुद्धि भी चलाते हैं। उनकी बुद्धि चलाने में उनकी मदद करने के लिए वो समझ जाते हैं कि बात किससे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। कोई भी व्यापार व्यवसाय के लिए निश्चित रूप से ये योग्यता भी चाहिए, ये टैलेंट भी चाहिए। हमें इस बात का गर्व है, हजारों साल से हमारी वो गौरवशाली परंपरा जिसके बलबूते पर भारत सोने की चिड़िया के नाते से पहचाना जाता था,
लेकिन आज बदलते समय में, आज आने वाले समय में, आज हम जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आप देखो केवल उदाहरण, तो मैं अगर राजनीतिक बात न करूं लेकिन थोड़ी सी तुलना जरूर करना चाहूंगा। 1947 में देश आजाद हुआ और आजादी के समय देश की आर्थिक व्यवस्था विश्व के बाकी सारे देशों की तुलना में 15वें नंबर पे थे, 15 नंबर का हमारा अंक था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वहीं इजराइल भी तो हमारे 1 साल बाद आजाद हुआ था। आज इजराइल कहां से कहां चला गया। और कई सारे 42 में हमारा पूरा जापान, नागासाकी, हिरोशिमा के बाद उस जापान की हालत क्या हुई, लेकिन जापान उठ के खड़ा कहां हो गया। अभी हमारी आर्थिक व्यवस्था में 1-2-4 महीने बाद हम शायद उसको क्रॉस करेंगे, लेकिन क्रॉस करने में कितने साल लगते, वो दोबारा उस दौर में पहुंच गया। तो आज का समय भी अपना देश को पुरुषार्थ होता है। ये तो हमारी गुरु परंपरा के आधार पर वीरों महावीरों की धरती है। तो आज बदलते दौर में 2014 में हमारे देश की 11 नंबर की आर्थिक व्यवस्था में नंबर था, लेकिन आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था से हम तीसरी तरफ जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। इतनी कम समय में 11 साल बहुत बड़ा समय नहीं होता, लेकिन 11 साल से भी कम समय में जिस प्रकार से इस देश के अंदर आर्थिक तंत्र पूरा बदला है, जिस प्रकार से व्यापार व्यवसाय की संभावना बढ़ी और देश के नेता कैसे होना चाहिए, जो आंख में आंख डाल करके हमारे लिए रूस का भी वही महत्व जो अमेरिका का, हमारे लिए चाइना के लिए भी वो हिसाब रखने में अपना देश का नेतृत्व, देश के नागरिकों के लिए, देश की भविष्य की योजनाओं के लिए जिस प्रकार से काम कर रहा है, इससे बढ़कर कोई समय नहीं। तो आइए हम सब आगे बढ़े, क्योंकि आप आपके लिए नहीं कर रहे हैं, आप आपके साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं, इस देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ पंजाब की उन्नति के लिए मैं केवल निमंत्रण देने आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सत्र हमारे उसी भाव का रहेगा। जैसे मैंने कहा, मैं कोयम्बटूर, बेंगलोर, सूरत और देश के कई सारे राज्यों में, इसी प्रकार से विदेश में भी, और हमने हर महीने हर बार अपने यहाँ इसी प्रकार की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए और ये राज्य के बाहर रोड शो करते हुए हमारी बात सबके बीच रखते जा रहा है। और उसका परिणाम निकला कि बीते फरवरी में हमने लगभग 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पूरे देश से आमंत्रित किया। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये पहली बार है और हम उससे थके और रुके नहीं। ये हमने पहले कॉमन रूप से किया, फिर अलग अलग सेक्टर वाइज, हर सेक्टर में बड़ी संभावना। जैसे मुझे नहीं मालूम यहाँ साइकिल इंडस्ट्री तो है, लेकिन लोहे की कोई खदानें हैं मुझे नहीं मालूम, है क्या यहाँ पे खदानें? इसके लिए से शायद काम चलता था पहले, ऐसा या जो भी बाहर से लाना पड़ता होगा। लेकिन हमारे तो स्टील आप प्लांट लगाए। हमारे यहाँ अभी बीच में हमने शहडोल में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। शहडोल के अंदर 2 कारखाने 3,500 करोड़ के, जो अपने आप में इसी प्रकार से सिंगरौली, सतना, रीवा और केवल पूरा माइनिंग के अंदर जितनी संभावना मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश देश का वो एकमात्र राज्य है जिसकी जमीन में हीरा भी मिलता है और सोने की खदान भी मध्य प्रदेश के अंदर है। मैं तो केवल आपको आमंत्रित दे रहा हूं कि आप सब आइए। जिस भी प्रकार की कोयला क्यों है तो पानी की पर्याप्तता के आधार पर बिजली सभी प्रकार से बनाने की संभावना, निवेश के सभी सेक्टर में कोई सेक्टर ऐसा बाकी नहीं जहां बड़ी संभावना नहीं। मैं मान के चलता हूं कि जब आप निवेशकों से बात करते हो तो आपको भी इस बात की ध्यान में आई रही है। और जिस प्रकार से मुझे आज रिस्पांस मिला, सच मानो इतनी जगह गया लेकिन लुधियाना में जो प्यार मिला है वाकई मुझे अभिभूत कर दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और जीवन में ये प्यार भी भूलेंगे। आइए हम सब मिलकर के भारत माता की सेवा में इसी प्रकार से लगातार बढ़ते रहे। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आग्रह करती हूं पंजाब के प्रमुख एसोसिएशंस जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी एईपीसी के प्रतिनिधि श्री हरीश दुआ जी कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। और उनके साथ मैं इनवाइट करती हूं फिको से श्री गुरमीत सिंह कुलार जी,
CICU से श्री उपकार सिंह आहूजा, JITO से श्री भूषण जैन और FIO से श्री SC राल्हा। कैमरा टीचर खोलो, कैमरा टीचर खोलो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर अब बेंगलुरु और सूरत के बाद लुधियाना में उनका ये तीसरा सेशन है। उद्योगपतियों और कई क्षेत्रों के इन्वेस्टर से बातचीत की है। MP में निवेश के अवसर पर कैसे ये बेहतर इनपुट्स मिल सकते हैं, जो मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति हैं उसे कैसे उद्योगपतियों तक पहुंचाया जाए, तमाम जो कोशिशें हैं इस वक्त सरकार की, ये तीसरा ये सेशन है जो इस वक्त लुधियाना पंजाब से आयोजन किया गया। कई उद्योगपति इसमें शामिल हुए और पूरी कोशिश जो सरकार की है वो इसी दिशा में है कि कैसे निवेश मध्य प्रदेश में आए, जिससे उद्योग स्थापित हों, रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुले। तो बेंगलुरु और सूरत के बाद लुधियाना में ये तीसरा सेशन सरकार का था। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर ये इस थीम पर आज बातचीत हुई है उद्योगपतियों से और उन्हें वो सिंगल विंडो की कैसे एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी जो उद्योग लगाने की प्राथमिकताएं थी, नीतियां थी, वो कैसे इम्प्लीमेंट की जा सकती है, कितना सरल और सहज मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति बनाई गई है जिससे निवेशक को वो सब लाभ मिले जो क्षेत्र के लोग और सरकार उन्हें मुहैया कराना चाहती है सिंगल हैंडेडली। और दूसरी तरफ पूरी जो कोशिश थी कि कैसे सरकार की जो औद्योगिक नीति है वो उद्योगपतियों तक पहुंचे और वो निवेश करें मध्य प्रदेश में, ताकि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले और बेहतर अपॉर्चुनिटी उन्हें मिले। विवेक पटिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं और बेहतर इनसाइट्स के लिए। विवेक बताएं और क्या हुआ वहां पर? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश में निवेश कैसे आए इसको लेकर जो है लगातार देश में भी और विदेश में भी जो है निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज जो है बेंगलुरु और सूरत के बाद लुधियाना पहुंचे हैं। लुधियाना जो है देश का विनिर्माण हब है और टेक्सटाइल और अन्य जो मशीनरी के उपकरणों के लिए औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है और आज मुख्यमंत्री ने वहां पर अलग अलग उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी की है और इंटरव्यू सेशन में अपने मध्य प्रदेश सरकार की निवेश नीतियों को मुख्यमंत्री ने रखा है और कैसे बेहतर मध्य प्रदेश देश के अन्य राज्यों से निवेश के लिए अवसर उपलब्ध कराता है, निवेश के लिए बेहतर है, मध्य प्रदेश की निवेश पॉलिसी में क्या खासियत है, ये मुख्यमंत्री ने जो है उद्योगपतियों को बताया है कि मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए एक अनुकूल माहौल है। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ सरकार की जो नीतियां है, निवेश नीतियां, वो कितनी मुफीद है उद्योगपतियों के लिए, वो भी मुख्यमंत्री ने वहां पर शेयर अपनी जो है बातें रखी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश एक निवेश हब कैपिटल के रूप में उभर कर सामने आ रहा है और बेंगलुरु में जिस तरह से सरकार को सफलता मिली थी और करीब 8,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले थे, ऐसे ही जो है सूरत में भी इसी तरह निवेश प्रस्ताव मिले और हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुले। ठीक वही उम्मीद अब जो है लुधियाना से है और इसका भी प्रतिफल जो है आज निकलकर जब सामने आएगा, जब सरकार के पास निवेश प्रस्ताव और लुधियाना में औद्योगिक घरानों से मिलेंगे तो एक पॉजिटिव जो है मध्य प्रदेश के लिए ये आज लुधियाना का जो इंटरव्यू सेशन है ये पॉजिटिव होगा और बड़े निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, शुक्रिया विवेक तमाम इनसाइट्स के लिए। तो मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए पंजाब के लुधियाना में और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और जो रणनीति है, मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति है, उन तमाम विषयों पर एक वृहद बातचीत उद्योगपतियों के साथ हुई है और उन्हें आमंत्रित किया है कि मध्य प्रदेश आएँ और ऐसे कई जगह हैं, कई खनिज संपदा से भरपूर है मध्य प्रदेश, जहाँ पर निवेश किए जा सकते हैं, उद्योग लगाए जा सकते हैं और जो पॉलिसीज़ हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वो भी इतनी शानदार है कि उससे दोनों पक्षों का लाभ होगा। उद्योगपतियों और कई क्षेत्रों के निवेशकों के साथ ये चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
बेंगलुरु और सूरत के बाद अब लुधियाना में ये तीसरा सेशन था। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये सेशन, क्योंकि उद्योगपतियों के साथ कई क्षेत्रों के जो निवेशक हैं उनके साथ भी बातचीत हुई है और जो पूरी कोशिश है कि कैसे मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक नीति है उसे उन उद्योगपतियों तक पहुंचाया जाए, उसकी खासियत, उसकी विशेषताओं को उन उद्योगपतियों तक पहुंचाया जाए, ताकि मध्य प्रदेश में निवेश का रास्ता खुले और निवेशक आएँ, मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति का लाभ वो लें। तो बेंगलुरु और सूरत के बाद लुधियाना में ये तीसरा चरण, जिसमें प्रदेश की मुखिया खुद वहाँ पर गए और जो नीतियाँ हैं, खासकर इंडस्ट्री फ्रेंडली जो नीतियाँ बनाई गई हैं उसके तहत ये बातचीत हुई है। बड़ी सकारात्मक बातचीत है। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा अगर मिलेगा तो न सिर्फ मध्य प्रदेश का विकास होगा, बल्कि जो रोज़गार के अवसर खुलेंगे युवाओं के लिए, उस दिशा में भी प्रदेश के मुखिया लगातार प्रयासरत हैं। तो पंजाब के लुधियाना की ये तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर कैसे और बेहतर उसके रास्ते खुलें, इस सिलसिले में प्रदेश के मुखिया ने बातचीत की है तमाम उद्योगपतियों से, निवेशकों से। नीतियों के बारे में वृहद बातचीत और विस्तार से बातचीत हुई है, ताकि एक समझाने की कोशिश है। संबोधन में भी लगातार प्रदेश के मुखिया ने ये आश्वासन दिया है कि निवेश के तमाम प्रयास आप करें, आपके साथ सरकार खड़ी है और जो औद्योगिक नीति मध्य प्रदेश की है वो भी खासी इंडस्ट्री फ्रेंडली है।